Modi sir is a rock star. Anywhere he goes, all across the world, even USA, he is a rock star. India, everybody is recognizing India. My kids here, one word about India. Great, great. India is great. India is great. Vast. Vast, it is vast, it is huge, it is big. One word about India. Amazing. It is Amazing. incredible. India is incredible. I love it here. Bolo Bharat Mata ki! भारत माता की Hey! We loved it. Bolo Vande! Vande! And what about the show? The concept of this Republic Day is Atmanirbhar Bharat, Make in India project. What you can tell about this? I mean, look, make in India. We are 1.3 billion people here, and we've got all the funds and all the knowledge and all the infrastructure and all the skills. So we don't need anybody. Even though I live in the U.S., we Indians, we are strong, we are capable, and we can do it just by us. We love it. बहुत अच्छा लगा आज 26 जनवरी पे आके। मैं 10 साल से इधर एनसीआर में रह रहा हूँ। फर्स्ट डे है मेरा इधर 26 जनवरी पे आने का। पहले जो दिल्ली अपने खेल खिलौना था, कोई भी आके फटाका फोड़ जाता था। अब कोई फुलझड़ी जलाने से पहले भी 4 बार सोचेगा, क्योंकि आगे बैठा है मोदी सबका बाप। 24 के लिए जो राहुल गांधी पहुंचे थे वहाँ भारत जोड़ो यात्रा लेके। सर अब उनके लिए तो क्या कहें, वो किसको भी जोड़ ले, अपने घर के कुनबे को तो जोड़ नहीं पा रहे हैं। जो उनका दाया हाथ था ज्योतिराज सिंधिया, वो हमारे पार्टी में आके आज नागरिक उड्डयन मंत्री बने हुए हैं। तो ये कुछ भी नहीं। अब ये सचिन पायलट भी हमारे खेमे में आने वाला है। तो राजस्थान में तो निश्चित रूप से वसुंधरा ही आएगी, और 25 की 25 सीटें हम लोकसभा की उसको बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। सर हम भी भीलवाड़ा राजस्थान से ही हैं। ईस्ट और वेस्ट, मोदी इज द बेस्ट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। So we're all from the USA, and we came here to celebrate Republic Day with everyone. My wife, my kids here, and we love it here. We run a radio show in the US called Masala Radio. We're always talking about India and India colors, and so we're filled with Indian pride. And you know, this year Modi ji said, For one day, just to come for the parade. Modi ji said that all the VIP passes are going to go to all the people that are working in the city, like the rickshaw walas, the bus walas, the train walas. So everybody else, like us, we get to watch with the regular people, and I had no problem. We loved it. Bolo Vande! Vande! And what about the show? The concept of this Republic Day is Atmanirbhar Bharat, Make in India project. What you can tell about this? I mean, look, make in India. We are 1.3 billion people here, and we've got all the funds and all the knowledge and all the infrastructure and all the skills. So we don't need anybody. Even though I live in the US, we Indians, we are strong, we are capable, and we can do it just by us. We love it. How US see India today? Because before times they are not able to giving visa to PM Modi. यार सर, वो अभी मोदी सर is a rock star. Anywhere he goes, all across the world, even USA, he is a rock star. India, everybody is recognizing India. My kids here, one word about India. Great, great. India is great. India is great. Vast. Vast, it is vast, it is huge, it is big. One word about India. Amazing. It is Amazing. incredible. India is incredible. I love it here. Bolo Bharat Mata ki! भारत माता की I love it here. Hello re hello. देखिए यहाँ पर सिर्फ अगर बात की जाए तो इस दिल्ली शहर नहीं, देश के अलग शहरों नहीं, बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आए हैं। और सिर्फ आज के दिन इस रिपब्लिक डे को देखने के लिए तो हमें गर्व महसूस होना चाहिए, जब आज पूरी दुनिया जो है वो यहाँ पर फॉलो कर रही है। अब देखिए धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। सबसे बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मकसूद आलम। कहाँ के रहने वाले मकसूद आलम? मैं नेपाल का है। नेपाल के रहने वाले हो? कैसा लगा यहाँ पर आकर के आज? अच्छा लगा इधर आके, बहुत अच्छा लगा। इधर 26 जनवरी का बहुत अच्छा लगा देख के। कैसा है नेपाल इंडिया का रिलेशन अभी तो बहुत अच्छा है, नेपाल इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है। अभी यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं, पशुपतिनाथ जाते हैं, नेपाल के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं। तो पीएम मोदी को कैसे देखते हैं वहाँ? पीएम मोदी को तो बहुत अच्छा देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छा मानते भी हैं, बहुत अच्छा देखते हैं। और भी लोग हैं, सबसे एक एक करके बात करेंगे। सभी आज क्या नाम है आपका? प्रेमपाल सिंह सर। प्रेमपाल सिंह, कहाँ के रहने वाले? मैं सर मथुरा से ही हूँ। कृष्ण मथुरा के रहने वाले। जी सर। क्या कहेंगे, आज गणतंत्र दिवस पर आए थे आप? सर आए थे, लेकिन कुछ झांकियाँ देखने को मिली। पास नहीं कर पाए थे बुक, तो रोड से ही थोड़ा सा झांकियाँ देखने को मिली।
बहुत अच्छा लगा। हमने 4-5 जगह देखी, अपना उत्तर प्रदेश का देखा, उत्तराखंड का भी देखा था, केरला का भी देखा था। बाकी देखा जाए तो बहुत अच्छा लगा आज 26 जनवरी पे आके। मैं 10 साल से इधर एनसीआर में रह रहा हूँ। फर्स्ट डे है मेरा इधर 26 जनवरी पे आने का। और कुछ देर बाद अब चुनाव भी आ रहा है, मूड क्या है इस बार 24 में? सर चुनाव तो आ रहा है, पता ही है सबको, मोदी जी मोदी हैं, और क्या है, और कोई नहीं? और कौन आएगा सर? आसपास भी नहीं है कोई। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमित खंडेलवाल, अमित खंडेलवाल। कहाँ के रहने वाले? भीलवाड़ा, राजस्थान। राजस्थान के रहने वाले हो। आए थे आज यहाँ गणतंत्र दिवस पर, आज क्या कहोगे? जी सर, बहुत बढ़िया सिक्योरिटी करी है सरकार ने, और चप्पे चप्पे पर पूरी सुरक्षा की पूरी चाकबंद रखी है। पहले जो दिल्ली अपने खेल खिलौना था, कोई भी आके फटाखा फोड़ जाता था, अब कोई फुलचड़ी जलाने से पहले भी 4 बार सोचेगा, क्योंकि आगे बैठा है मोदी सबका बाप, और सबको उन्होंने हिला रखा है, पूरी सिक्योरिटी दे रखी है। आम जनता बहुत खुश है और एक सिक्योरिटी महसूस हो रही है। पहले जो आते थे हम तो डर डर के आते थे कहीं कुछ नहीं हो जाए, अब चप्पे चप्पे पे पूरी सिक्योरिटी दे रखी है आम जनता को। पूरा आपको ने पूरा प्रोटेक्शन दिया मोदी जी को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा अनुभव हुआ हमको। राजस्थान के आप रहने वाले हो, बस कुछ महीने बाकी हैं, वहाँ चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है? बस वहाँ पर अब वसुंधरा भुआ हम भुआ बोलते हैं, जैसे मायावती को दीदी बोलते हैं, ममता जी को दीदी बोलते हैं, वैसे हमारी बहन जी बोलते हैं मायावती को, वैसे ही वसुंधरा जी का जादू चलेगा। वसुंधरा जी का बैकग्राउंड राजनीति का बहुत बड़ा है, और वसुंधरा जी एकदम अब सुर्खियों में आने लग गई है। हमारे राजस्थान में भी अब पोस्टरों में उनका है, और उनका विधायकों से और सांसदों से बहुत घनिष्ठ जुड़ाव है, तो निश्चित रूप से वसुंधरा जी ही आएगी। 24 के लिए जो राहुल गांधी पहुंचे थे वहाँ भारत जोड़ो यात्रा लेके, सर अब उनके लिए तो क्या कहें, वो किसको भी जोड़ लें, अपने घर के कुनबे को तो जोड़ नहीं पा रहे हैं। जो उनका दाया हाथ था ज्योतिराज सिंधिया, वो हमारे पार्टी में आके आज नागरिक उड्डयन मंत्री बने हुए हैं, तो ये कुछ भी नहीं। अब ये सचिन पायलट भी हमारे खेमे में आने वाला है, तो राजस्थान में तो निश्चित रूप से वसुंधरा ही आएगी, और 25 की 25 सीटें हम लोकसभा की उसको बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। आपका क्या नाम है? सर शरद वर्मा, शरद वर्मा। क्या कहोगे अभी? सर हम भी भीलवाड़ा राजस्थान से ही हैं। ईस्ट और वेस्ट मोदी इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट मोदी इज द बेस्ट। थैंक यू। देखिए सबके पास आएंगे एक एक करके। सर आपका क्या नाम है? जी भूषण प्रसाद मेरा नाम हुआ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी मुखर्जी नगर से हूँ, और हर साल आता हूँ मैं 26 जनवरी को, और बहुत अच्छा लगता है, और इतनी खुशी होती है सारे इतनी पब्लिक को देख करके, देश विदेश से लोग आते हैं। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा इस भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो एक बहुत ही ग्रेटफुल लीडर है, और माई पीएम। अच्छा, आप हर बार आपने जैसे बताया बहुत बार आप आते हैं, इस बार क्या अलग लगा, क्या नया लगा, क्या इंटरेस्टिंग लगा? इस बार बहुत सारे जो युद्ध पोतों को इस बार शामिल किया गया है, तो हर साल कुछ न कुछ नया होता है और हट करके होता है, इसलिए लोग हमेशा यहाँ आना चाहते हैं 26 जनवरी को। बाहर से भी, फॉरेन कंट्री से भी लोग आए हैं, और भी देशों से आए हैं, और मिस्र के राष्ट्रपति हमारे चीफ गेस्ट थे, तो उनका भी वेलकम किया गया है। तो मैं धन्यवाद करूँगा हमारे ग्रेट पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जी की जय। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इस बार के गणतंत्र दिवस में आपको बता दें, उससे भी लोगों की राय लेंगे। अब तक जितने भी गणतंत्र दिवस मनाए गए, ये 74वां था, आज तक जो 21 तोपों की सलामी होती थी, ब्रिटिश की तोपें इस्तेमाल की जाती थी अभी तक। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की, आत्मनिर्भर भारत की जो बात की जाती है, यहाँ की स्वयं निर्मित स्वदेशी तोपों का आज इस्तेमाल किया गया है। ये अपने में बहुत बड़ा गर्व का विषय है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज सर। कहाँ के रहने वाले हो? इम्तियाज, दिल्ली से ही दिल्ली के रहने वाले हो। क्या कहेंगे आज के इस गणतंत्र दिवस को एकदम अनोखा बनाया गया, सब स्वदेशी? आया हूँ, मैं देखा नहीं तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं लेट पहुँचा हूँ। अभी जो माहौल देख रहे हो, सभी यहाँ पर आर्मी वाले, हमेशा ही रहता है सर, कल भी आओगे आप ऐसे ही मिलेगा, परसों भी ऐसे ही मिलेगा, माहौल तो हमेशा ऐसे ही रहता है। लेकिन आज का दिन तो खास है। जो खास था वो लेके चला गया मोदी, अब कहाँ खास है? हम तो खुद बनाते हैं खास, अब कहाँ खास है? ये तो डेली का ऐसे ही, कल भी आओगे आप ऐसे ही, एक सप्ताह बाद आओ आप ऐसे ही मिलेगा, भीड़ मिलता ही है। ये हम लोग इसको देखने आते हैं, बस इसको देखने आते हैं, बस खुश रहे, बस और क्या चाहिए सर। हाँ अब बस मैं नहीं आ मैम आपका क्या नाम है? नमिता अग्रवाल, कहाँ के रहने वाले? उज्जैन महाकालेश्वर की महाकालेश्वर, महाकाल का कॉरिडोर बन चुका है। जी जी, बहुत क्या कहेंगे आज के इस परेड के बारे में? बहुत इंजॉय किया हमने। लकीली नितिन गडकरी जी, अमित शाह, सबके साथ फोटो वगैरह भी खिंचवाने का मौका मिला। आई फील सो प्लेजर टुडे एंड आई रियली एंजॉय टुडेज डे। अच्छा, क्या कुछ अलग लगा, इंटरेस्टिंग लगा? क्या सोच के आए थे, एक्सपेक्टेशंस क्या थी, और उसके बाद क्या देखने को?
हाँ, एक्सपेक्टेशन तो थी कि इतना अच्छा मतलब प्रोग्राम होगा और अकॉर्डिंगली था भी। बहुत प्रिपरेशन, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डेकोरेटेड, तो आई एंजॉयड इट थॉरली। थैंक यू। मध्य प्रदेश में अब चुनाव भी आ रहे हैं, कुछ समय बाकी रह गया, क्या मूड है इस बार मध्य प्रदेश की जनता का? मतलब अभी जब कांग्रेस की सरकार आ भी गई थी फिर भी बीजेपी को आना ही पड़ा, तो आई थिंक फिर से बीजेपी ही सरकार में आएगी। 2024 लोकसभा में पीएम भी अकॉर्डिंग टू मतलब जो सिनेरियो है, मोदी जी जितना काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि मोदी जी फिर से आएंगे। थैंक यू। धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर घनश्याम कुर्रे है, कहाँ के रहने वाले हो? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो, आए थे आज परेड देखने? हाँ, आज परेड देखने आया था। मतलब लाइफ में मैं फर्स्ट बार यहाँ देखने आया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी थोड़ी देर एक भाई साहब ने बोला कि हम लोग बस यहाँ देखने आते हैं, ये करने आते हैं, घूमने आते हैं। ये चीज़ मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो लोग भूल गए हैं। क्योंकि जो हमारे जो सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी, जो फ्रीडम फाइटर हैं हमारे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन लोग का जो प्राण का आहुति दिए हैं वो ये लोग उनको व्यर्थ कर रहे हैं। ठीक है, तो इन लोग को उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत करके, इतना तकलीफ करके वो इतना स्वराज किए हैं, देश को आज़ाद करवाए हैं। इन लोग का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और मैं हमारे जो आर्मी भाइयों हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इतना बड़ा देश है हमारा, जो एकता, अखंडता और राष्ट्र संप्रभुता का निशानी है। ठीक है, और हमारे देश में किसी भी प्रकार से कोई ऐसा नहीं है कि असक्षम है ऐसे टाइप से। यही हमारे वीर जवान हैं, इन्हीं की बदौलत तो हम घर में रात को आराम से सो पाते हैं, आराम से घूम पाते हैं, और इनकी इज्जत नहीं करेंगे तो किस करेंगे, वही मेरा कहना है। और वो जो भाई साहब बोले वो मेरे को बहुत खराब लगा, और इतना उत्सुकता लगा रहा है, इतना भीड़ है पब्लिक में, गणतंत्र दिवस लेकर बहुत उत्साह है। और मैं सभी अपने भाई बहनों से बोलना चाहूँगा, जो छोटे भाई बहन हैं मेरे बेच के, ठीक है, उन लोग को बोलना चाहूँगा कि अच्छे से पढ़ें लिखें और लाइफ में आगे बढ़ें, कुछ बड़ा ड्रीम करें, कुछ बड़ा गोल करें, IAS IPS बने, डॉक्टर इंजीनियर बने। ये नहीं कि फालतू घूमें 4 दिन ऐसे मोबाइल पर सब ज़्यादा ध्यान मत दें, पढ़ाई लिखाई पे ही ध्यान दें। और जैसे मेरा ड्रीम भी है कि मैं IAS, मतलब छत्तीसगढ़ से आया हूँ IAS बनने के लिए, और मैं UPSC का कोचिंग कर रहा हूँ। तो मैं अपने सभी भाई बहनों से बोलना चाहूँगा कि पढ़े लिखें और लाइफ में आगे बढ़ें और सक्सेसफुल बने। ऑल द बेस्ट आपको, UPSC की आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, जहाँ से आप आ रहे हैं, उसका पॉलिटिकल सिनेरियो भी आप देख ही रहे होंगे। कुछ देर में इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो क्या मन की इच्छा क्या है इस बार? अब देखिए, चुनाव का मुद्दा तो ऐसा मुद्दा है कि एक को जिताने के लिए दूसरों को हराना पड़ता है, ऐसा। और ये है कि चुनाव में जैसे किसी को बोलोगे तो उसके अगले मतलब विपक्ष से हम लोग दोषी ठहराए जाएंगे। तो मैं फिर भी बोलना चाहूँगा कि अभी मोदी जी ही चल रहे हैं, और मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले जो राष्ट्रपति थे उन लोग को भी मैं देखा हूँ, तो इतना टेक्नोलॉजी में भी कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक है, प्रधानमंत्री लोग, और जैसे जो मोदी जी सर जी आए हैं वो इतना कुछ किए हैं भारत के लिए, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जैसे हथियार के लिए और जितने हथियार दिखाए गए, ज़्यादातर पहली बार ऐसा हुआ कि सब स्वदेशी बार हुआ और स्वदेशी थे, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और अभी हाल ही में शायद 2 ही दिन पहले का न्यूज़ है, सबमरीन एक आया था, ADS ऐसे करके एक सबमरीन आया था, वो भी हमारे नरेंद्र मोदी की ही देन है। तो और सब तो बाकी सब ठीक ही है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार पांडे सर। कहाँ के रहने वाले हो? सर बिहार से रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले जी बताइए। सर, यहाँ पे अभी हम सुने कि मतलब लोगों को लगता है कि यहाँ आना जाना तो लगा रहता है। एक वो भाई कह रहे थे कि हम आए हैं। सर, हम बिहार से चल करके यहाँ आए हुए हैं, तो उत्सुकता हमारे अंदर जरूर थी। और सुबह से ही मतलब कि 6 बजे सुबह में हम स्नान करके एकदम रेडी थे कि कैसे भी करके इंडिया गेट पे जाना है। क्योंकि सर जानते हैं, यहाँ से देश का श्रद्धा जो है, देश के लोगों का श्रद्धा जुड़ा हुआ है और देश का गौरव जुड़ा हुआ है इंडिया गेट से। तो इसलिए इंडिया गेट हमारे लिए तो खास है। लोगों के लिए आना जाना रोज का लगा रहता होगा, लेकिन हमारे लिए सर खास है। इसका नाम पहले राजपथ था अंग्रेजों के जमाने से, अब इसको कर्तव्य पथ कर दिया गया है कि अपने कर्तव्यों को पहचानो सभी। जी, तो सभी लोग अपने कर्तव्य को पहचाने और निर्वाह करें, ये इंडिया गेट से मैसेज सबको जाना चाहिए, क्योंकि इसी उद्देश्य के साथ ऐसा नामकरण भी किया गया है। अच्छा, और बिहार में क्या पॉलिटिक्स सिनेरियो चल रहा है? नीतीश कुमार पहले बनने जा रहे थे प्रधानमंत्री, बीजेपी से हट गए, अब कह रहे हैं राहुल गांधी को ही बना। बिहार का जो राजनीति है वह हमेशा उछल पतल के साथ चलता रहता है सर। और सर, यहाँ पे बिहार में जो है नीतीश कुमार, उनको कुर्सी बस चाहिए। कुर्सी के लिए वो किसी पार्टी को छोड़ सकते हैं और किसी पार्टी के साथ जा सकते हैं। बिना विचार की पार्टी चला रहे हैं वो, और विचारलेस पार्टी है उनकी। क्या लग रहा है 24 में आपको क्या होगा? 24 में तो प्रशांत किशोर जी कैंपेन चला रहे हैं वहाँ पे, और नई
सोच के साथ जनसंवाद कर रहे हैं, पंचायत गांव घूम रहे हैं। यहाँ और पीएम की कुर्सी पे कौन बैठेगा? कुर्सी के लिए तो सर नरेंद्र मोदी ही परफेक्ट हैं और उनका विरोध करने वाला भी कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो हैं परफेक्ट लीडरशिप निभा रहे हैं और वैसा लीडरशिप बाकी अन्य किसी लीडर के अंदर दिख नहीं रहा। विकल्पहीन है विपक्ष और इस वजह से नरेंद्र मोदी जो हैं एक विकल्प के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं दिख रहा है।